Welcome back, guys, to 10th episode, part 2. Right. As the previous episode is getting continued, इसमें मैं, Thomas, Siddhant, hi Bull, Hi guys. and With our then Piyush and two special guests. Balaji are with us, Yep. with our And two special guests. We uh, shall be continuing with the Coorg episode right now. With the starting point is Coorg, and yeah, you're gonna some tune into that. some more about our language and the food that our country has to offer. And for more information, please stay tuned and please listen to the part 2 of episode 10. ये है अरे तू भी कूर्ग गया, तेरे को वहां पे कुछ कॉफी के बारे में कोई नई किस्से नहीं पता चले? किससे क्या आई मीन मतलब कोई स्टोरी, कोई कॉफी की कोई स्टोरी बोल रही यार इंडिया में कूर्ग कॉफी। आई मीन मैंने काफी सुना है वहां पे Coorg dark is not choc- just coffee, right? Sorry? It could be any. Coorg is can be any spice. The plant Coorg is spice Coorg plantation, is famous for a lot of things. no, right? Yeah, Vanilla, vanilla. vanilla, pepper, chocolate. pepper, cardamom. Chocolate, chocolate का I really don't get the hype in Coorg about chocolate because मुझे भी मेरे को पता भी नहीं था। मैंने कहा Chocolate यहाँ पे is- क्यों फेमस है, मैं शॉक chocolate था, बट is- वहाँ है। नहीं chocolate is not an Indian thing. Cocoa grows in Africa. ट्रू। एंड यहाँ पे ये है कि बस वो ला के उसको अच्छे से मोल्ड वोल्ड्स में डाल के बनती है। इवन इफ यू गो टू ऊटी एंड ऑल फॉर दैट मैटर, इन एनी साउथ इंडियन हिल स्टेशन, बी इट कोडाईकनाल और ऊटी और कूर्ग, हर जगह यू नो दिस चॉकलेट प्रेजेंस इज देयर एंड आई हैव ऑलवेज फाउंड इट वेरी वियर्ड। मे बी इट हैज सम हिस्टोरिकल वो, बट कॉफी की जहां तक बात है, यस, कॉफी एंड टी आर टू कैश क्रॉप्स which have had a lot of history to them in both these regions, because both of them are introduced by the British. I mean, plantations were never there prior to the arrival of the British, and then they grew in size and capacity, and that is why you would find a lot of tea and coffee brands bearing very British names, Glendale's and God knows what not. Twinings की आती है ना वो छोटी छोटी English breakfast tea and all चाय that. चाय, हाँ हाँ, Earl Grey. So, I mean, so yeah. So these are again not indigenous plantations. They've been introduced much later, but now they are sources of great revenue and economy, because you see these crops are very labor intensive. चाय को तुम ले लो, एक एक पत्ता ऐसे ऐसे तोड़ के लेना पड़ता है। वैसे ही कॉफी के साथ भी है, those beans have to be picked by hand. A machine cannot do that job. So because of that, a lot of employment generation has happened in these regions, and I think that's a good thing only. In fact, that is why British also made this concept of bakery very popular. That is why you will see almost every hill station they have a local bakery. Exactly. Every hill station, अरे ये हमारा bakery है. We make homemade chocolate, our custom made chocolate, custom made cakes and muffins. One and the only one in the whole world. Yes. Yeah. वो है ना, they very proudly display a banner. We have no branches. Yeah, But yeah, damn but right, you don't have branches. their stuff is really good. But I mean, Yeah. no doubt about that. It is very well made. We I think we vanilla found का a भी similarly कुछ उसका स्टोरी है ना, इंडिया में वो इनिशियली नहीं था शायद vanilla. किस चीज का? Sorry, vanilla. Yeah. Yeah. Again, it's not an indigenous crop. It is again a South American thing. Because my grandfather has a small farm and all. So back then, probably when I was a small kid, this whole thing कि vanilla में बहुत पैसा है, ये एक प्रचार हुआ था केरला में, and सबने vanilla खरीद लिया, और सबने जब खरीद लिया उसके पैसे मतलब सब गिर गए। और हमारे घर में भी vanilla खरीदा था, हमने भी उगाया था, और वहाँ होगा जब पैसा सब उसमें से खत्म हो गया, we let it go. I mean, वहाँ randomly creepers है, vanilla plant is a creeper. So they are just random vanilla creepers you can find in the. And do they still yield those pods which are so priced? I have seen them once or twice, but then later removed them. We cleaned the farm and all, so they aren't there anymore. तो वैसे ये होता है, मतलब एक पॉइंट पे सबने सारे एग्रीकल्चर सारे फार्मर्स बैठ के बोलते हैं हाँ vanilla कल से बहुत महंगा है. रबर used to be the main thing
in Kottayam, but now it's not that cost. Now it's not as expensive as it used to be, and so पेपर का भी मैंने सुना है. pepper it's still very expensive. It's one of the more Pepper is expensive. like one of But those. यार gold. एक चीज है ना, if you think about it, मैं वही बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, हमारे इंडिजिनस क्विजीन में क्या यूज हो रहा है. अब नाउ इफ यू हैव अ वेनिला प्लांटेशन एंड टुमारो इफ फॉरेनर्स आर नॉट बाइंग योर वेनिला प्रोड्यूस, तुम ये जान लो कि इंडिया में तुम्हारा मार्केट नहीं है. कौन खाता है वनीला? वनीला की सब्जी बनती है क्या? वनीला तुम दाल में डाल सकते हो क्या? सांभर में डाल सकते हो क्या? नहीं डाल सकते. तो इंडिया में तुम्हारा मार्केट नहीं चलेगा. Whereas look at something like black pepper. Black pepper is something which is used in our cuisine as well. So even if tomorrow you lose on say foreign clients for black pepper, you will have a market here. But if those foreign clients were say vanilla or at one time tea, क्योंकि इंडिया में नहीं पीते थे यार चाय लोग. वो तो इंडिया में मतलब अंग्रेज आए, उन्होंने प्लांटेशन किया, तब हमको एकदम चस्का लग गया चाय का. जैसे चाइना के साथ हुआ था, ओपियम करके एक ड्रग होता है जिसको आई थिंक अफीम बोलते हैं. अफीम हिंदी में. Chinese didn't even know what opium is, and the British started cultivating opium over there, and then Chinese became hopeless addicts. So much so that a war had to be fought between the Chinese and the British to stop the cultivation of opium in China. So these crops cannot have a market unless they are liked by the local populace. Maybe in the times to come, because आजकल things like vanilla and coffee तो भैया is popularity is growing like wildfire, right? Everyone drinks coffee these days. मतलब आज अभी ये कुर्ब जाके मुझे भी लगने लगे that I think even I am a coffee liker. I should also make this coffee. And I have got so much coffee from there. I have no clue what I'm doing with it because it's just घर आके गूगल कर रहा है कैपेचिनो, लाटे, मोका और अमेरिकानो में फर्क क्या है. ये समझाओ हमको पहले. कुछ नहीं, ज्यादा हो गया तो मेरे को दे दो, मैं ले लेता हूँ तेरे से. बस हाँ चलो बढ़िया, ठीक है. फिर वो प्रेस कॉफी, नॉर्मल फिल्टर कॉफी. वैनिला का पता है क्या? वैनिला का ना मुझे हमेशा लगता था वैनिला का मतलब प्लेन, मतलब इट हैज नो फ्लेवर. नो फ्लेवर. हाँ ये मुझे भी यही लगता था. तो क्योंकि वैनिला आइसक्रीम मिलता था ना, एंड वैनिला आइसक्रीम मींस मतलब कुछ नहीं, मतलब जिसमें कुछ फ्लेवर नहीं है वो वैनिला है. मुझे बहुत बाद में पता चला कि वैनिला एक्चुअली एक स्पाइस है. और मुझे तो मतलब ये भी बहुत बदल चला कि वनीला को एक स्पाइस बोला जाता है. मतलब फ्लेवर एक चीज है, उसको स्पाइस बोल रहे हो ना, क्योंकि स्पाइस का लिटरल ट्रांसलेशन दिमाग में मसाला ही आता है. तो वनीला तो आइसक्रीम तो मसाला कैसे? फ्लेवर एक चीज है, टेस्ट अलग चीज है ना. हाँ, मुझे नहीं लगता कि जो आइसक्रीम कंपनीज है, आई डोंट थिंक दैट दे एक्चुअली पुट वैनिला एक्सट्रैक्ट इनटू द आइसक्रीम. डू दे? कम डालते होंगे बहुत, because it's very expensive. Yeah, they can't sell it for 10 rupees then. Exactly. And vanilla is supposed to be the cheapest flavor of ice cream. Yeah, exactly. हाँ, exactly. कुछ हो ना हो, vanilla जरूर आएगा. Vanilla तो जरूर होगा. Dessert में. And the actual spice is so costly. Oh my god. Maybe real vanilla ice cream tastes very different. It might actually taste good. It might actually Vadilal and. But now the very word vanilla has now been associated with basically no flavor, or with just the bare minimum. Exactly. So abhi in computer science also, when we talk about some libraries na, abhi ye library use karenge, wo karenge, then this term is used. This is a plain vanilla library. पुराना old इसमें कोई features नहीं है, बस ये एकदम base version है वैसे. नाम खराब. I got a very weird popular culture reference, but okay, I think we should not. Okay. अच्छा हाँ, तेरा आईटी के साथ इतना लिंक नहीं है ना यार, तू भी अपना दे दे यार. मैं आईटी की बात नहीं कर रहा हूँ. I know of another reference to vanilla and its lack of flavor, rather. अच्छा. Which is also used in slang these days. So, okay, let's just talk about something else. अरे पीयूष तू अपने तेरा नेटिव स्टेट के बारे में बता ना. उत्तराखंड ना. हाँ. तू गढ़वाली है, कुमाऊनी है? गढ़वाली. तो उसका गढ़वाली है?
हाँ ओ पेठे, हाँ, बेडू पाको. हाँ बेडू बेडू पाको. पाको is a Kumaoni song भैया. Oh no. Hey, there are both. I know that there are both Gadwali and Kumoni versions of that song. हाँ, that can be there, but it's essentially a Kumaoni song. बेटा वो सांबर चेन्नई का नहीं है, वहाँ का है, बट तमिल का भी होता है ना, तमिल होता का है, भी होता होता है. Oh yeah, yeah. दोनों ने रटा है. बाहुबली ओरिजिनली कौन सी मूवी थी पता नहीं, सब में निकली थी, वो तो सबकी होगी. सब क्यों गए? अरे वो कौन सी मिठाई होती है उत्तराखंड की, वो बाल मिठाई होती है, नहीं वो हाँ, वो ऊपर वो होम्योपैथिक पिल्स ऊपर होते हैं, वो वो वाला ना. होम्योपैथिक पिल्स होती है ऊपर. होम्योपैथिक पिल्स हमें यार. उसको क्या कहते हैं, बाल मिठाई कहते हैं ना उसको. हाँ. थॉमस को पता है बाल मिठाई क्या होता है? तूने देखा है बाल मिठाई? नहीं भाई, मतलब I think अरे, तूने you खिलाई है can मेरे picture को. it very easily. It's like Yeah, yeah. this Think of a brown brown color का Karachi there's a halwa. brown bar. There's a हाँ. brown bar, and on Okay. that there are these. You know how homeopathic pills are, right? Yeah, yeah. of Those course. tiny small उसके ऊपर- sugary balls. Yeah, yeah. डाल So दिए they बस. just stuck on this mass of brown. So that is now. Don't ask me Okay. the etymology and why is it called bal mithai. There'll be some logic to it. मेरे को नहीं But पता. again, मैंने वो again, मिठाई- it's I claim no knowledge of it because again, it's a Kumaoni thing and I'm not Kumaoni. So yeah. अच्छा, तेरा अच्छा लगा. ओ भाई साहब. ऐसे मैं नहीं हाथ सीखूंगा. धोए, ऐसे हाथ चल. धोए, ना मैं हूँ ना मुझे जानना है, कुछ नहीं. हाँ, पर तमिलनाडु का मुझे पता है कि हाँ. वहाँ पे क्या मुझे बोलते हैं. सब पता है. बाजू में मेरा कुमाऊं है, मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा. दुश्मनी है वहां से. घर की मुर्गी दाल बराबर 2.0. अबे यार. हाँ यार, और पीयूष ऑफेंड हो गया, चला गया. हाँ, चला. आ बंद कर दिया गया. सॉरी यार, पीयूष बुरा मत मानिए, वापस आ जा, वापस. बहुत बुरा नहीं है. Okay. कुछ बता ना उत्तराखंड का. अच्छा, कि तो local- गढ़वाल के बारे में हाँ, बता ना. So Gadwal ka khana is it's very unique, and again, as I said, the food of any region is determined by how the topography is, how the climate हाँ. is. So हाँ. since it is cold over there, so there has to be warmth-inducing food. There's something very interesting that I discovered recently, and Bala Bhaiya is here, so I think it's great that he's here because he's from the region जिसके साथ ये मुझे connect मिला. So in Karnataka, they eat a lot of millets, and there is a dish in Karnataka called ragi mudde. Mudde or mudde? हाँ. Bhaiya knows it better. मुद्दे means So- ball. Ball. So essentially, what ragi mudde is that ragi का आटा लेते हैं and it is cooked on a slow flame with water. तो उसका एक पेस्ट टाइप का बना देते हैं and then it becomes a mass like a halwa. And then Okay. it is made into this ball and उसको उसके अंदर थोड़ा सा घी डाल के it is eaten with sambar or whatever. So an exactly same dish is eaten by us in Gadwal, जिसको हम बाड़ी बोलते हैं. Badi is exactly the same thing. The same atta from that ragi plant is taken and it is cooked over a slow flame and made into. The only difference is कि हम उसमें घी इतना नहीं डालते जितना कर्नाटका में पड़ता है. So basically, warmth-inducing food is very important in the region that I come from. And another something very interesting that I got to know is this preparation that we make. हम क्या करेंगे? दाल को पकाने का एक तरीका ये होता है कि हम उसको सिलबट्टे में पीसते हैं. दाल को भिगो दिया रात भर, and then उसको निकाल के we'll put it on that mortar and pestle, जिसको कहते हैं सिलबट्टा. उसमें पीस के उसका एकदम पेस्ट बना के then we will make a thing out of it. इसको हम फाणू बोलते हैं गढ़वाली में. And so that is a very unique. I have not seen this anywhere else because दाल पीसने का कल्चर तो है. दाल पीसती है, दाल पीस के लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं. जैसे they'll make vadas out of it, they'll make dosas out of it, they'll make idlis out of it. But to make a curry out of that pisa hua dal is something that I've seen only in my native state. And what else? There are some things which are becoming very popular. Matlab they are becoming the face of Gadwali cuisine. For example, bhang ki chutney. भांग के बीजों से अब थॉमस की आंखें खुली, सबको Now we are talking. Now we are talking. So, but sadly, I mean, I don't know, उससे होता कुछ नहीं है because it's a virgin भांग chutney. भांग के बीजों में there is no Which part of the plant? अच्छा, the seeds. seeds. Hmm. तभी तो So पत्ते they have नहीं like use करते ना zero. वो.
they have like zero intoxicating elements नहीं in them. बाकी चीज So किसी और के लिए यूज कर लिया ना मतलब अब सीड वो थोड़ी बचा अरे वो ऐसे ही होगा, अरे वो इतना कर लिया, अब जो बचा इसकी कर चटनी बना दे बचे यार। क्या हाँ, चटनी ये बना कर देते सकते हैं I mean in that ऐसे intoxication everything sounds great ऐसे आइडियाज आने के लिए भी एक जोन, माइंड जोन चाहिए होता है ना, तो वो करके ही आता है वो। एक्चुअली और उत्तराखंड के साथ और दो इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। उत्तराखंड में ना देर आर मेनी पीपल हु हैव देयर सरनेम एज जोशी, सुना होगा तुमने? yeah, Mhm. Brahmins. जोशी। हाँ, And yeah, and what I've heard is some of them actually say that some of them they told me that our ancestors came from Maharashtra, and they My carried own their- family came. My own So- family has Marathi origins. yeah. My So there is grandmother a- used to tell me हाँ, that see, we also came from Maharashtra. see, there was a group of people who migrated from Maharashtra into the mountains in Uttarakhand, and then they stayed there only, and so all these people whose surname is Joshi, they are all originally from Maharashtra. अच्छा, okay मेरे को मैं तो बड़ा उनको मैं बड़े घर funny वाली way- सरनेम बोल। सोचता था मेरे से में I used to always associate Joshi with a from Uttarakhand that surname only हाँ, क्योंकि Yeah, north no, में a lot north of में जो- lot of Marathis are. This is a very interesting thing that has surfaced in recent times. Another linguistic connect that I found with of Garhwal with the Deccan. There is a retroflex sound which is there in a lot of languages, but North Indian language में नहीं होता है, जो ल sound है. हाँ 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 ल समझते हो? ल, which is not there in Punjabi, which is not there in Bengali, which is not there in Hindi, which is not there in Sanskrit also. हम्म, Sanskrit, it's there in Vedic it is Sanskrit. there. It's It is there in Vedic old Sanskrit. हम्म, but not in Puranic Sanskrit. So that is a ल sound. जैसे मराठी में अगर आपको मिसल बोलना है या भुसावल बोलना है या गोपाल काड़ा बोलना है तो वो ल साउंड, आई होप यू गेट इट. जैसे इवन it's there in Malayalam also. Kerala, Keralam, Keralam, right? yeah. So that l sound, I had not seen it anywhere in the north. It's there in all four Dravidian languages. It is there in Gujarati, it is there in Marathi. And very interestingly, हमारे गढ़वाल में भी वो साउंड है. जैसे गढ़वाल का जो लास्ट वाला ल है, that itself is a retroflex ल. It's गढ़वाल, not a normal ल. जो टंग ऊपर से रोल करके आती है ना, वही वाला हाँ, ना? हाँ, तालू, हाँ, जो आपका ऊपर पैलेट टच करेगा, that is हाँ, correct. Vellam. Vellam, exactly. Or in Tamil, actually, but Malayalam and Tamil, they have even a more severe form of that additional to this ಳ. And param, That is param. in that Mala. tongue doesn't even touch Rain, the roof of the mouth. And there are these there are three extra alphabets in Tamil and Malayalam, which North Indians are never able to pronounce. They It's very tough. It's very tough. बताना. it is देखो, एक होता है न, ठीक है, बोलते हैं नहीं वाला न. न, हाँ, फिर एक न है बाण वाला न. ण, हाँ, एक और न है न. पहले तू बाण वाला न बोल और see where your tongue touches your mouth. ण, ठीक है. Now pronounce the same thing with the tongue not touching the roof of the mouth. How can you do that? I'm not getting there. वो it is so hard for you to pronounce. कितना सही है. अच्छा. And similarly there is this la, and then there is this la which is there in Marathi and Gadwali, and it's there in Nepali also. Nepali, yes. It's not there in Hindi, Punjabi, Haryanvi and all. It is there in Marathi, Gujarati. It is there in Tamil. In Tamil, Malayalam, it has another extreme version of it. It is la. First is la, then ಳ, and then there is ळ. तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, उसमें समझ भूल जाओ. मेरे को एक वर्ड से आता है तो बोल सकता हूँ, नहीं तो the alphabets. For example, Tamil itself, Tamil में जो है ना, Kozhikode. It's always cozy code for other people. For others people it's Calicut.
I am Kozhikode. It's never Kozhikode. ये नहीं वो ऐसे अबे मैंने ये भी लोग देखे हैं ABC IM में C मतलब कैलकाटा K मतलब सॉरी हाँ C मतलब कैलिकट K मतलब कोलकाता ये भी सुने हैं मैंने And Alapura. They Alapura. call it Alapi. अरे Alapi हो गया वो. तमिल itself, the तमिल में जो ड़ है ना, it is not तमिल, है ना? अरे ये तमिल है क्या? मैं तमिल नहीं है. It is not ल. It is that this itself is that special ल. It is Tamil. Yeah. You hear a native Tamil speaker pronounce this very word Tamil. You see how he pronounces. No, Tamil. It's nothing like Tamil. अभी ये जो इवन चेन्नई वाले ना चेन्नई वाले भी ठीक से नहीं बोलते. वो बोलते हैं आई एम स्पीकिंग इन तमिल ओके डा. तो लाइक ये तो मैंने सुना है ओके डा ये तो है ओ भाई साहब I think ए भी तो दो होते हैं ये ए भी तो दो होते हैं एक सबसे कंफ्यूजिंग तो मुझे व्हेन आई वाज लाइक ट्राइंग टू लर्न हाउ टू रीड यस इन यार हमारे हिंदी में आ ई उ ऊ ए आई ओ औ आई नहीं होता था अबे नहीं वो आई होता है ये हिंदी भाषा में इसको ए बोल देते हैं मैं वही बोल रहा हूँ वो बताया जाता है मैं वही बोल रहा हूँ आई होता है बट बताया ए जाता है ए इन तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम आ ई उ ऊ ए आई ओ औ नाउ हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन ए एंड ए मुझे आज तक ये लॉजिक समझ नहीं आया कि हाउ no I'll explain. It is very simple. Just like e and u they have a lagu form and a dirgha form. So there is lagu u, the short u and the long u. So like that there is a short a and a long a. Okay. How is that different? I'll tell you long I'll tell you. Say in English we have met, MET. And how do you pronounce MATE? Mate. Yes, so that is the difference. अच्छा, okay. अच्छा मतलब अगर हिंदी में हमको अगर लिखना है मेट और मेट हाँ तो हम दोनों के लिए एक ही मात्रा यूज करेंगे एग्जैक्टली एक ही मात्रा यूज करेंगे एक ही मात्रा बट इफ यू आर राइटिंग इट इन द तमिल स्क्रिप्ट यू कैन पुट टू डिफरेंट सिंबल्स आई थिंक वो अगर वही बट अच्छा मैं सोच रहा था उस तरह का अगर मेट लिखना है तो म एक ही मात्रा ट अगर मेट लिखना होगा तो वो म एक ही मात्रा उसके ऊपर वो अनुस्वार लगाते हैं ना एस जो उसको इलोंगेट करता है मेट तो वो वही बन जाएगा थॉमस पढ़ लेते हैं संस्कृत थोड़ा तमीज से नहीं भाई अब वो टाइम गया बट थॉमस की भाषा में तो है ना वो साउंड मलयालम में तो है वो बट मलयालम मैंने मतलब घर में जितना बोला आई स्पीक इन मलयालम एट माय प्लेस एंड क्योंकि cousins and all, but I haven't had any formal education in Malayalam though. Ghar mein whatever they have taught me to read the newspapers and all, so it's very hard for me to read newspapers. My Malayalam can only be used to find the bus, where the bus is going. You know, वो एक split second में वो direction पकड़ के चढ़ जाना है बस में. Yeah, isn't like the basic that you need. That's it. I mean, हाँ exactly. मुझे भी इतनी पंजाबी पढ़नी आती है. हाँ वो पटियाला जा रही है, वो जलंधर है, वो चंडीगढ़ है. बस चढ़ जा. अरे मेरा पता है क्या? मैंने जब तमिल सीखा ना, पढ़ना लिखना पढ़ना, मैं छोटा था, ठीक है. मुझे पता नहीं क्या, मेरे पेरेंट्स ने फोर्स नहीं किया, मेरे अंदर ही कुछ खुजली आया कि मेरी माँ का भाषा है, मुझे सीखना चाहिए. मैंने वो लर्न तमिल इन 30 days करके एक बुक आता था पहले. हाँ आजकल इतना पॉपुलर नहीं है बट उस टाइम पे बहुत पॉपुलर. मैंने उठाया इंग्लिश 30 days है. हाँ फिर मैंने ऐसा उसका लिखना पढ़ना सीख लिया. फिर मैं एक बार तमिलनाडु गया, ठीक है, और है ना तमिल ऑलरेडी हंसी आ रही है, क्या ही हुआ होगा सोच के. अरे यार एक तो मैं तमिल का पहले बताता हूँ उसमें स्ट्रेंज चीज क्या है. अभी अपना जो व्यंजन है ना, हिंदी का वर्णमाला में जो व्यंजन है, क ख ग घ है ना, फिर न आता है. तमिल में फॉर क ख ग घ देयर इज ओनली वन अक्षर. How? Yes. And there are no varga aksharas in Tamil. हाँ. There are no varga aksharas. And what is that akshar? Then for ch,
K. The base sound is K. Base is And अच्छा. First. depending on context, they pronounce it at G sometimes. It's so Understood? funny. Understood? मेरे दिमाग में पता है क्या आया था? तो पता है, अरे तो पता है Typical North Indian joke. मेरे दिमाग में हाँ। अंगल. हाँ, this is the reason of that. This is the This is the reason for reason of that. that. Yes. So, or and Church. Malayali is also, yes, Malayali is also pronounce it similarly because Malayalam is derived from Tamil. Okay, so that is a carryover from there. फिर च का भी ऐसा ही चलता है. Yes, ch, च, ch, j, jh का झ. एक ही अक्षर है. And च. then based on context, they will either say ch or j. Okay, that is why Oh. you say if you in Chennai ना ये और ये होता है पता है, ये हिंदी फिल्म एक्टर्स है ना जाते हैं चेन्नई ये साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में और उनको किसी ने बोल दिया अरे जट्टी कहाँ है तेरा, बोला जट्टी क्या होता है, इसका क्या मतलब है, वो चड्डी बोल रहे थे. ठीक है, Jatti is no, I think it's a common word now. ये हाँ. माना जाता है. हाँ, ओ जट्टी ओ अबे अच्छा जट्टी एक्चुअली वर्ड होता है मतलब हाँ. नहीं सी ना j and j ch they हाँ are एग्जैक्टली सेम दिस थिंग एंड they are ड समवर्ग. हाँ ट ठ ड ढ वो ट का वो हाँ, जट्टी अबे yes, तेरी. so Tamilians Okay, ना मैंने ऐसे नहीं सोचा था. they very frequently interchange these sounds. That is why they will also say, even for Gandhi na some of them they say Kanti, they will say Kanti. like that, they will say pronounce Mr. Kanti has come when actually it is Gandhi. Shiva. The word Shiva itself is Chiva. Chivan. Shiva, yeah, if you go and if you read the spelling of Shiva in Tamil, it is actually written using cha, so you will read it as Chiva. Okay, Shiva. then in modern day times, just to accommodate Sanskrit sounds into Tamil, they added a few alphabets, they added a few symbols to deliberately pronounce. There is no h in Tamil. Okay, so even for Hari they used to say Gari. Then there is no ओ तभी वो रागुल Ragul. Ragul. They say Ragul. Exactly. Yes, because Ro- actually in old Tamil there is no h, हाँ so they replace that with that g, and so they say Ragul. Hey, Ragul, come here. ए रागुल सुब्रमण्यम वाला. Okay. हाँ And if you read the spelling of Subramaniam also in Tamil, huh? If you're a novice, you are just learning Tamil, you will read it as Subramaniam Chupiramaniyam. because there is no sa in Tamil. स को च बन जाएगा. तो ऐसे ही मैं एक मंदिर में गया था, प्राचीन मंदिर में. They had written there and I had a tough time figuring out, and all the labels in front of every deity was in Tamil script. Okay, हाँ. मैं एकदम कॉलर टाइट करके गया, अरे मेरे को तमिल पढ़ना आता है, मैं पढ़ूंगा. ठीक है, और एंड माय मदर इज देयर बिसाइड मी. शी टोल्ड मी, अरे क्या लिखा है. see the irony, my mother being Tamilian, she can't read and write Tamil, but she can speak amazingly, very fluent. Okay, I can't speak fluently, but I can read. ओके Okay. हाँ Okay. ये वैसे थोड़ा हाँ ये थोड़ा नया है बट ओके हाँ. हाँ, तो मेरे को बोला ये क्या लिखा है, पढ़ के बता. तो अब इज्जत का सवाल है ना, बोलना पड़ेगा क्या लिखा है. तो मैं पढ़ने लगा और अभी मैंने सारा प्रॉब्लम्स बताया ना कि क्या क्या होता है तमिल में. हाँ तो मैं पढ़ने लगा और मैंने सबसे पहले पढ़ा उधर टेढ़ा लिखा है. ठीक है, मैं हैरान हो गया कि क्या टेढ़ा क्या लिखा है, क्या मतलब है इसका. ठीक है, फिर मैं और ध्यान से पढ़ा, तेड़ ची ना लिखा था. ठीक है, तेड़ ची ना मूर्ति, और मुझे समझ में आया दक्षिणा मूर्ति लिखा है. ओ माय गॉड, और लिखा अच्छा, पता है हाँ, अच्छा और लिखा है ऐसा तेड़चिना मूर्ति. Tichina. क्या लिखा है, मैं हैरान हो गया था तभी. तो My if God. you तो अभी देखो त और द एक ही अक्षर है ना, तो कब त यूज करना है, कब द यूज करना है, दैट इज द एम्बिग्यूटी. Yeah. भाई साहब हम लोग खाने से लैंग्वेज पे कब पहुंच गए बट Anyway, तो बड़े काफी इंटरेस्टिंग तो है ये तो. Migration. माइग्रेशन ये भी माइग्रेशन ही है मतलब. हाँ, तो ऐसा है. ऐसा तो मैं भी मतलब You can do an episode even on Indian languages. I think it's a very Actually- fascinating thing. We should do Actually, one मैं- episode on languages. लैंग्वेजेस पे तो मैं तो अभी एक्चुअली सोच रहा हूँ इसको ऐसे कर दे पार्ट 1 फूड पार्ट 2 लैंग्वेजेस.
हाँ It'll be fun. It'll be fun. नहीं बट हाँ लैंग्वेजेस पे तो पूरा एक करना चाहिए हमें, वो तो लैंग्वेजेस है। को इनफैक्ट इसको अलग कर सकते हैं, ये सेगमेंट को अलग कर सकते हैं। हाँ हमने फूड और से ज्यादा बात करी नहीं. I हाँ कोई think नहीं, we spoke more on languages. कोई नहीं, वी कैन We need to डेफिनेटली, listen to it again. आई थिंक वी कैन टेक दिस अप अगेन फॉर श्योर। मेरे को लगता है ये मतलब हाँ ये बहुत बहुत डीप, डीप नहीं, बहुत क्या है, इंटरेस्टिंग है। बहुत वाइड स्प्रेड है, इसमें बहुत कुछ है डिस्कस Exactly, करने, हाँ. बहुत इवन कुछ इन है। इंडिया हमने कभी इवन कभी इंडिया बाहर ही, तक तो पहुंचे ही बाहर नहीं भाई, बाहर तो मतलब जाना ही नहीं, अब इधर जाने ही ही नहीं, बहुत कुछ है हिंदुस्तान ही भाई, पकड़ लो इधर तुम बहुत पहले. कुछ ही है। Exactly. अभी तो अभी हमने नॉर्थ उत्तराखंड कवर किया, साउथ बहुत कवर किया, आई थिंक वेस्ट का कुछ नहीं कवर किया, महाराष्ट्र कवर किया टू सम एक्सटेंट, नॉर्थ राजस्थान मैं बहुत, वेस्ट का मैं बोलता हूँ, हाँ गुजरात के बारे में मैं बताता हूँ। यू नो भाई, गुजराती डिशेज में बोलते हैं ना, अरे हर चीज में मीठा है, मीठा बना दिया, तो हाँ पता है ना। तो पता है क्यों करते हैं वो लोग ऐसा? देयर इन देयर ट्रेडिशनल कुकिंग, देयर वाटर यूज्ड टू बी सॉल्टी, द नेचुरल वाटर अवेलेबल देयर वाज यूज्ड टू बी सॉल्टी। ओके. So to compensate for शुगर that, ही they used to रहता put sugar अच्छा in एरिया. all their dishes. हम्म, अभी आजकल तो क्या, अभी हर एक के घर में आरओ आ गया, फिल्टर वाटर आ गया, तो अलग हो गया ना। हाँ So but that sugar, that adding sweet to the food, that that has continued. that step remained a constant। हाँ हाँ but before that they used to, पहले तो ये सब नहीं होता था ना, आरओ और ये हाँ सब, तो So I उस टाइम mean, पे देर, हाँ if the देर old people used to see गुजराती old people come, वो भी बोलेंगे यार क्या मीठा कर दिया तूने खाने को. हाँ हाँ हाँ, तो ये है गुजरात का। और हाँ। और इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट महाराष्ट्र, एक मिनट पॉज। हाँ। अबे वो जो बूढ़े लोग जो बोलते होंगे ना खाना मीठा हो गया, वो बोलते हैं कि ये ना पानी खराब है, तुम्हारी सदी का पानी में दिक्कत है। हाँ तुम्हारी सदी का अच्छा पानी पानी हो गया. पहले नमकीन पानी मेरे- था, फिर बताएंगे. मेरे जनरेशन का पानी अलग था। तो वही सीन है. हाँ आप नमक कुछ का है बता रहे पे. थे भैया। और हाँ हमने उड़ीसा का बात नहीं किया। उड़ीसा में पता है ना, जगन्नाथ मंदिर में जो 56 भोग होता है, ये हाँ। शायद पीयूष को पता होगा, उसको 56 भोग क्यों बोलते हैं? पीयूष को 7 पता होगा पहर, ये। 8 दिन में वो- 8 पहर होते हैं और हाँ। हफ्ते में 7 दिन होते हैं. हाँ। तो actually he held Govardhana like this हाँ। for 7 days, right? So he Okay. did not eat because he was holding it like this. He couldn't eat. So after 7 days got over, he was hungry. तो लोगों को इतना प्यार आ गया उनके ऊपर कि उन्होंने 7 दिन के 8 पहर का खाना, तो 7 8s are 56. So 56 dishes were offered to him at once. So from where the 56 भोग। tradition of 56 भोग bhog comes. निकला। 56, Okay. 56 is Okay. 56. Hmm. Yeah. हैं? नहीं बट 56 And- वो भोग में कुछ इंटरेस्टिंग बताओ ना, खाने में क्या है? वो अरे वो अरे तो 56 भोग का कंटेंट चेंजेस फ्रॉम रीजन टू रीजन. अगर आप ब्रज हाँ, जाओगे exactly. फॉर एग्जांपल, ब्रज Exactly. में तुम्हारी 50 टाइप की कचौड़ियां होंगी, 50 टाइप की चटनियां होंगी. इफ यू गो टू उड़ीसा, द 56 का द कंटेंट विल चेंज. देयर विल बी हाँ. 3-4 टाइप्स ऑफ राइस, देयर विल बी 3-4 टाइप्स ऑफ पखाड़ा. पखाड़ा इज राइस दैट हैज बीन लेफ्ट इन वाटर टू फर्मेंट ओवरनाइट. तो वो 3-4 चुंका पखाड़ा होगा, सुगंधी पखाड़ा होगा, दही पखाड़ा होगा. Then there'll be 4-5 types of dals. Dalma would be there. There'll be sweets. There'll be so many छेना होता है ना, छेना पनीर. हाँ हाँ छेना की 6-7 टाइप की मिठाइयाँ होंगी. The content of 56 bhog changes. You go to Bengal. Bengal maybe there is a tradition of 56 bhog. So they will have their own shuktos. They'll have different kinds of bhajas. They'll have different kinds of torkaris. They have, so that varies. But 56 is the number that has stayed constant. Marwad mein there is also a tradition of 56 bhog, for example. It's a North Indian built thing. हाँ you should actually go and visit that Jagannath Mandir. उधर outside the mandir there is a small place where you can actually order for this. मेरे को आज ये खाना है. 56 भोग खाना है। हाँ हाँ, तो they will come and they give you, और तुम मतलब it is like that ओनम साध्या, you will never be able to eat everything. सब कुछ तुम खा ही नहीं पाओगे, वो इतना वैरायटी होता है. हाँ तो वो देखोगे, अगर सामने देखोगे ना, ऐसा बड़ा सा ऐसा किचन है उनका, एंड दे मेक एवरीथिंग इन दैट ट्रेडिशनल स्टिल ना. आज अभी तक दे मेक इन दैट, वो क्ले का तंदूर होता है उनका. देन देयर स्टव इज आल्सो, एवरीथिंग इज मेड ऑफ क्ले, वो वाला. उसमें हाँ, तो दे डोंट यूज दिस मॉडर्न दिस यूटेंसिल्स एंड ऑल दैट. हाँ वो उनका जो मटका होता है ना, वो भी उसका ही है, क्ले का मटका है. उसमें दे मेक द ट्रेडिशनल 56 भोग. आई थिंक वही फिर ऐसी थाली खाने के लिए हमें भी स्टोरी के हिसाब से वही कि हम भी 8-7-8 दिन कुछ ना खाएं, फिर सीधे खाने फिर भागते, जाओ. फिर हाँ, तभी आज तुम्हें वो
आज सबका कंपनसेट करना, 56 भोग खाएंगे। भाई And भूख लग रही है अब। and one last thing I'll tell about, and this is very closely related to our Piyush Bhai Sahab here. ये महाराष्ट्र में ना, महाराष्ट्र में what they do, they make a special dish. श्रीखंड पता है ना सबको, श्रीखंड। हाँ हाँ, दही को लेते हैं, दही में से दही उसको टंगा देते हैं कपड़े में ताकि उसका सारा पानी निकल जाए, और हाँ। जो बचता है उसको बोलते हैं चक्का इन मराठी। इंग्लिश में क्योंकि वो टंगा है तो हंकर्ड। हंकड़, हाँ हंकड़। अच्छा यही लटका हुआ है। हंकर्ड होता है, यही हो तो गया, मेरे को हंकर्ड नहीं होता है। पता। हाँ, लटका हुआ दही। लटका हुआ दही। लटका हुआ दही। तो इसको ये जो चक्का होता है, इसमें ये लोग चीनी डालते हैं या गुड़ डालते हैं, जो भी, एंड समटाइम्स दे पुट सम अदर फ्लेवर एंड ऑल, एंड दैट इज कॉल्ड श्रीखंड। ओके, अब क्या करते हैं, अभी श्रीखंड इज ऑलरेडी द कर्ड विद द वाटर रिमूव्ड। करेक्ट। Okay, there is another derivative of this Shrikhand. They put, what they do is they put either milk or buttermilk. Buttermilk is it is the curd, the watery part of curd. Watery part of curd. हाँ, either buttermilk or they put milk. Okay, they अच्छा। put some milk into that Shrikhand and they make it a very thick paste, which can be you can have it like a milkshake, like a thick shake. Okay, उस कंसिस्टेंसी का होता है। and the name, do you know what is the name of that dish? It is called Piyush. उसके Okay. डिश का नाम ही पीयूष है। नाम पीयूष है उसका। उसका क्या रीजन है पता नहीं। अमृत है ना, I don't पीयूष know. का मतलब अमृत होता है। पीयूष का मतलब अमृत होता है, तो अमृत तत्व का जो आभास कराए वो ड्रिंक है पीयूष। ज्यादा हिंदी बोल गया यहाँ मैं पे यहाँ पे, sorry। ड्रिंक को ही प्रमोट कर रहा था ना, कुछ तो नहीं ना, मतलब वो टोन ऐसा चला गया था एक टाइम के वो बाद। दोनों है उसका हाँ। डबल एज स्वॉर्ड। डबल है। श्रीखंड, Killing श्रीखंड two birds में with- तो उस चक्का में अगर तुम दूध डाल दो तो पीयूष बन जाता है। अच्छा हाँ। भाई साहब, हो रैप अप करें भाई साहब। Yes. मजा आ गया। बहुत ज्यादा भूख लग रही है मेरे हमें को। दो को काटना पड़ेगा। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ यार कुछ बना लेता हूँ, या तो कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ, कुछ करते हैं। मेरे को मैं सच्ची बताऊं, मेरे को नींद आ रही थी, क्योंकि मैं चावल नहीं खाता हूँ आजकल। मेरे को बहुत टाइम से मैं चावल नहीं खा रहा हूँ, और अब क्या होता है, मैं चावल थोड़ा सा भी खाता हूँ मेरे को नींद आ जाती है। ठीक है, कल मैं एक बहुत फेमस एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, इट्स वन ऑफ दोस, जैसे वो आजकल होता है ना वो मिशेलिन स्टार वाला, वो एक सिंगल स्टार, तो वहाँ मैंने चावल खा के मेरे को नींद आने लग गई। मतलब मैं इतना वो हो चुका हूँ चावल को लेके सेंसिटिव। आज मेरे को पता नहीं क्या चढ़ा कि भाई आज दाल चावल खाने का मन हो रहा है घर का, तो मैं बनाऊंगा। और मैं इतना नींद में था, और अभी मेरे को वापस भूख लग रही है ना, ये जो श्रीखंड वाले टॉपिक के बाद स्पेशली, और वो 56 भोग के बाद अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ खरीदना ही पड़ेगा, मैं बना नहीं रहा कुछ। I think finally आज ओनम भी है ना, जो left over ओनम food is what is the plan for today। आज तो बर्तन भी नहीं होंगे ना ज़्यादा धोने को आज, क्योंकि प्लेट्स तो यूज ही नहीं हुई। बनाना लीफ यूज भैया तो खाना बनाना लीफ में तो नहीं बन रहा ना भाई। अरे यार पीयूष यार, प्लीज यार, जो कुछ एनालाइज नहीं करना चाहिए। तू जाके अमृत का प्रभाव दे लोगों को, ठीक है? तू भी चिल कर। बिहाइंड द सीन समझो ना तुम, बिहाइंड द सीन समझो। बहुत मेहनत जाती है यार, बहुत ज्यादा मेहनत जाती है केरला का ये सद्या का खाना बनाने में। आई कैन इमेजिन। हेलो, मतलब आई कैन खाना बनाने में भी मेहनत जाती है। हाँ, नहीं मतलब but when you have to prepare so many dishes together, तो है। I mean, and अगर if the base ingredient is something as formidable as a coconut, जिसको ग्रेट करने में तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। हे भगवान, यार घर में मेरे बाइसेप्स क्यों बन रहे हैं मेरे? यहाँ का कोऑर्डिनेटर मैं ही हूँ। और क्या? I'm so sure। दिन के 3 या 4 तो यही मिलते हैं। वाह, ये काम तो मेरी माँ ने बहुत करवाया है मुझसे, हाँ, फ्री ऑफ चार्ज। फ्री ऑफ चार्ज। you पढ़ाई से ब्रेक मिलो तो एक नीचे रख देते हैं। शुरू हो जा। I don't know, this is some sort of, the design is also very unique। वो नीचे पूरा मतलब बैठना पड़ता है, and there is a proper blade to it, तो बढ़िया है। yeah। सही है। हम तो बस गन्ने छीले हैं बचपन में, गन्ने बड़े खुशी नारियल करता था मैं वो, करते टेस्ट भी आता था, जूसी है, मस्त है, बस खत्म। ओहो, चलो भाई एक ब्रेक ली जाए खाने की,
इसी से रैप अप करते वाला पॉडकास्ट मस्त था। चलो। कोई एनी फाइनल कमेंट्स एनीवन वांट्स टू ऐड? आई थिंक ये वाला एक और हमें करना चाहिए, मेरे को लगता है इसमें बहुत कुछ इनकम्प्लीट रह गया। लाइक what we should do is food part 2 and language, a whole session for language. Sure. ओके, Great. डन सीन। थॉमस, कोई फाइनल कमेंट्स? That's it, man. I mean, अभी फाइनल का हुआ है, 2 और एपिसोड बचे हैं तो अब तो हाँ 2 और एपिसोड क्रिएट ही कर दिया इस पे। Done है, फेड done ही है। होती है। ठीक है, चलो। बढ़िया। It's just this thing for all the viewers who are listening. Please check out Piyush's Instagram. It's pretty good, and I mean he is not gonna ask for promotion or anything. But the point is, I have seen his profile. I think it's very good if you want to understand our history and our culture and our food much better than what you already know it about, like something like And that. I think Piyush, तेरे obviously चैनल का India, हैंडल का नाम right? बोल। Piyush Kukreti, it is my name. नहीं, इसका अपना इसमें डाल दो ना, Spotify में, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दो इसका। हाँ वो भी डाल हाँ, देंगे, हाँ। वो भी डालेंगे। सो PIYUSHKUKRETY। ऑल्सो मेनी पीपल एक्चुअली आस्क्ड मी कि हमारा वो डिजाइन किसने किया है। मेरे को बहुत लोगों के वापस टेक्स्ट आ रहे हैं। सो वो पीयूष के छोटे भाई ने डिजाइन किया, उसका नाम है विहान। सो यू कैन चेक आउट हिज इंस्टाग्राम हैंडल एज वेल। वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में हर बार डालता हूँ, तो प्लीज क्लिक ऑन इट एंड प्लीज चेक इट आउट। बाकी बाला भैया इन Thank you सबसे so ऊपर है। much. बाला भैया नहीं है इंस्टाग्राम वगैरह पे, उनको फेसबुक पे सब ऐड करो। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, पर मैं कुछ करता नहीं उसमें, और कुछ अच्छा, आई फिर एम नॉट ठीक है। एक्टिव है, So क्योंकि that is, जबरदस्ती किसी और ने बना दिया था। ओहो ऐसा भी होता है। चलो सब so with बाहर that, निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ हाँ अंदर किसी ने घुसा दिया है। हाँ, तो चलो रैप अप करते हैं देन। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड बाय बाय, टेक केयर। Thank you guys. Bye bye. Bye.